چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اصل طاقت کا جو محور ہے وہ عوام پاکستان ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام. فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہو. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی فوج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بدرکی جواب دیں. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں. افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. آرمی چیف اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ طاقت کا اصل محور عوام ہیں. فوج کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاک فوج قومی فوج ہے, کسی خاص سیاسی پارٹی یا نظریے کی طرف راغب نہیں. سپریم کورٹ میں جو بات ہوئی وہ اگر اوپن ہونا ہوتی تو چیمبر میں نہ کی جاتی. آئین ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے مگر فوج کے عہدیداروں کے خلاف کچھ باتیں غیر ذمہ دارانہ اور غیر آئینی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ذاتی اور سیاسی مقاصد ہوں. فوج کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی کہ ہر بات کا جواب دیا جائے. اداروں کے بارے باتوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. چیلنجز کے باوجود پاک فوج کی کامیابیاں ڈھکی چھپی نہیں. مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مصروف عمل ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بلوچ تنظیموں کے بیرونی رابطے سامنے آ چکے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ 2 دہائیوں کا طویل سفر ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات تاریخ کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کبھی بھارت کا اٹوٹ حصہ رہا نہ رہے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پاک بھارت دفاعی بجٹ میں فرق کے باوجود پاکستانی فوج دفاعی صلاحیت رکھتی ہے. ضرورت پڑنے پر لڑائی دشمن کے علاقے میں بھی لے جائی جا سکتی ہے. کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. عمران خان سے مذاکرات یا 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے متعلقہ بات چیت ہوگی. اتحادیوں کے اجلاس سے بڑے فیصلے ہوں گے. تحریک انصاف سے مذاکرات کے معاملے پر اتحادی جماعتوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات پر مسلسل اصرار پر جے یو آئی کا برہمی کا اظہار. مذاکرات سے انکار پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ اور جے یو آئی سے ناراض. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا مولانا فضل الرحمان جو بھی کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی مشاورت سے کر رہے ہیں. جے یو آئی کا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے کہنے پر تحریک انصاف سے مذاکرات پر زور دے رہی ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک کی گفتگو انتہائی سنگین ہے. ماضی کے متنازع فیصلوں نے بہت نقصان پہنچایا. وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر طارق نے کہا کہ سیاسی معاملات کو عدالت نہیں لے جانا چاہیے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ توہین عدالت ہو جائے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دونوں ایوانوں نے پاس کیا لیکن ملکی تاریخ میں پہلی بار قانون بننے سے پہلے ہی عدالت نے عمل درآمد سے روک دیا. آئین اور قانون کی بالادستی شفافیت نظر آنی چاہیے. اور
ऑडियो से वाज़ेह है पार्लिमानी कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो पर सू मोटो नोटिस ले। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा ऑडियो में पार्लिमान में अदालती मुदाखलत के तरीके बताए जा रहे हैं। तारिक रहीम बतौर हथियार पार्लियामेंट में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कहा यह साहिब निसार और दीगर का गठजोड़ है। तौहीन अदालत में जब सजाएं दें तो हमने देखी। अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन लिखना नहीं। Suo moto number 4 of 2010 reported as a 7-member judgment 2012 Supreme Court page 553 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ we are just waiting for the order ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3-member bench check another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को सो मोटो केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में मशवरे देते सुना जा सकता है। सो मोटो केस में 7 रुकनी बेंच के फैसले पर भी बात हो रही है। गुफ्तगू में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत में बरतरफी का हवाला देते हुए पंजाब इंतखाबात में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत का केस फाइल करने का मशवरा भी दे रहे हैं। जज बनने से पहले हम वकालत इकट्ठी करते थे। मैं उनसे सीनियर भी हूँ वकालत में। चले वो चीफ जस्टिस बन गए, अब रिटायर होके वो अपनी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो अगर हम एक जजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 वकील आपस में शायद बात ना करें क्योंकि ये इनको नागवार गुजरेगी। क्या गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है? वो लोगों की बातें सुने क्योंकि वैसे भी खिलाफ कानून है। उसके लिए मैं शायद मुझे कोई अब लीगल नोटिस देना ही पड़ेगा। ख्वाजा तारिक रहीम का ऑडियो लीक पर सख्त रद्द-ए-अमल। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो और साकिब निसार इकट्ठे वकालत करते रहे, बाद में वो जज बन गए। साकिब निसार अब चीफ जस्टिस नहीं बल्कि लॉ फर्म चला रहे हैं। कहा 2 कानूनी माहिरीन किसी जजमेंट पर बात कर रहे हैं तो किसी को क्या मसला है? क्या हुकूमत के पास लोगों की बातें सुनने के अलावा कोई और काम नहीं? अब शायद मुझे लीगल नोटिस देना पड़ेगा। शर्जील मेमन ने ऐवान सदर में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात पर सवालात उठा दिए। कहा इमरान खान के मुताबिक सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा जनरल बाजवा ने दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि गैर मुंतखब शख्स के मशवरे पर असम्बलियाँ तोड़ी गईं। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा आज साकिब निसार की ऑडियो भी सामने आई। साबिक चीफ जस्टिस के सो मोटो केसेस और फैसलों पर सवालिया निशान बन गया। इमरान खान की मदद करने वाले गैर आईनी काम कर रहे हैं। जो लोग इमरान खान से छुपकर मुलाकातें करते हैं, कोई पता नहीं कुछ अरसे बाद किसी इंटरव्यू में बता दें इमरान खान के इंटरव्यू पर सो मोटो होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इस शख्स ने फौज को बदनाम करने की कोशिश की, किसी दौर में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, अब ये शख्स मुल्क बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मजीद कहा 63A के फैसले में बड़ा तजाद है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। बदकिस्मती से कुछ फैसलों के जरिए आइन को तब्दील कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वां यौम तासीस लाहौर ज़मान पार्क में तकरीब का इनेकाद। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कारकुनान से खिताब किया। कारकुनान के पार्टी के हक में नारे, पार्टी तरानों पर रक्स। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी का मामला। मियां असलम इकबाल की जानिब से इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए स्क्रीन लगाई गई। पुलिस ने इकबाल पार्क समनाबाद का घेराव किया। पुलिस मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। ज़राए ने मियां असलम इकबाल की महफूज मकाम पर मुंतकली की भी तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से लाताल्लुकी का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास भी पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सदारत से फारिग। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर मुक़र्रर। ख्वाजा फारूक कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। इमरान खान का कहना है कि पार्टी से वफादारी करने वालों को इज्जत दी जाएगी।
पी टी आई आज़ाद कश्मीर में फूट पड़ने लगी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत ख़त्म होने की जिम्मेदारी साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक पर डाल दी। कहा, परवेज़ खट्टक की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में पी टी आई की हुकूमत गिरी। सोचे समझे मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया। तनवीर इलियास ने कहा कि परवेज़ खट्टक से इख्तलाफात इमरान खान के सामने रखे जाएंगे। मुल्क बचाने के लिए हमने इमरान खान को निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारी हुकूमत आई तो लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को बतौर वजीर आज़म देखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। मुल्क भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स हुकाम को हिदायतनामा जारी कर दिया। SOP के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला किया गया। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की नई गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भी हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक और मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला। 80 साल अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवा दिए। ईद की तातीलात खत्म, लेकिन आबाई घरों से वापस आने वालों को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200% तक मनमाना इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटर और इंट्रा सिटी किराए बढ़ा दिए गए। शहरियों ने कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा करके मजीद बोझ डाला जा रहा है। महकमे मौसमियात ने आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, मशरकी पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। बारिशें एतवार तक वक्फे से जारी रहने की तवक्को। मरी, गिलियात और पोठोहार रीजन में भी मौसम अबर आलूद रहेगा।